Hello everyone, thanks for joining us today. Are you all excited to start contributing in open source just after today's session? Have been installed made your GitHub account? If not, hurry up as we will be soon starting with our session. And it will give you hands-on practice on what is Git and how to use it. We will just wait 2-3 minutes more for our audience to join us. I would like to thank TechSahead for organizing such a brainstorming session. TechSahead is an open community for all the students to learn and explore things together.
At Tex Ahead, we believe in the power of knowledge to enhance humanity and make greater impacts. For all tech enthusiasts, designers, and curious learners, Tex Ahead is here for you. We frequently organize peer to peer mentoring sessions to engage with people and make valuable connections. Connect us with Connect with us on social media handles to be a part of community and stay updated on the latest trend and technologies. Now the time is here. We will start with our today's session on Git and GitHub with our speaker Sarthak Jain, who is a founder of Dot Question Mark and a system admin contributor at Red Hat. He is also winner of many hackathons. Welcome, sir. Now the virtual stage is yours. I would like to thank TexAhead for organizing such a brainstorming session. TexAhead is an open community for all students to learn and explore things together. At TexAhead, we believe in the power of knowledge to enhance humanity and make greater impacts for all tech enthusiasts, designers, and curious learners. TexAhead is here for you. We frequently organize peer to peer mentoring sessions to engage with people and make valuable connections. Connect with us on social media handles to be a part of community and stay updated about the latest trend in technologies. Now time have arrived. Let's start with today's session on Git and GitHub with our speaker Sarthak Jain, who is the founder of Dot Question Mark and system admin contributor at Red Hat. He is also winner of many hackathons. Welcome, sir. Now the virtual stage is yours. Hello everyone. Am I audible? Okay. Hello everyone. Yes, sir. Let's Let's start with this session. Before starting the session, I would like if anyone know anything about Git and GitHub. If anyone can tell me what is Git and what is GitHub, what is the difference between Git and GitHub? Anyone in the room who know the basic difference between the Git and GitHub? Yes or no, guys? It will be really great if you interact with us, and it will be a great session. By the way, okay. So no worry, no worry. Sumit doesn't know about Git and GitHub. Let's start with the Git and GitHub part. Okay. Before starting the Git and GitHub, let me tell you more about myself. Okay, my name is Sarthak Jain. I'm the co-founder of Dot Question Mark. Okay, I am the GitHub Extension Cracker 2021. More about myself, I am contributing on GitHub. I'm on the GitHub from past 4 to 5 years when I was in my freshman year. Okay, so today what we are going to learn, is we are going to learn Git from very basics. What is Git, how it formed, and what are the problems arises with a developer when he is working on a Git or GitHub. Okay, so let's start. One last thing, then we are going to start with the session. Guys, are you comfortable in Hindi or English, or we need to use both the languages? Please comment in the chat if we can use both the languages, or Hindi or English. Please comment. Okay, great. Great. Let's start with this. Okay. What is GitHub? Yes. Okay. So in today's session, we are going to talk about Git and GitHub. In this session, this is not a session for me, guys. You know, this is something like a proper training for Git and GitHub. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आई एम थिंकिंग दैट दिस इज सेशन एंड वहाँ पे आऊँगा और आपको पढ़ा के चलाऊंगा. वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक्स, फ्रॉम जीरो टू द नेक्स्ट लेवल. जो आपने, हो सकता है आप में से किसी ने सुनी भी ना हो. गिट में ऐसी चीज़ें होती है, गिटहब में ऐसे होता है, हो सकता है आप में से यूज़ भी ना करें. ठीक है, तो व्हाट इज गिटहब और गिट इज समथिंग विच वी कैन use locally on our system, and this is something which we can use remotely on our system. I don't want कि आप इन दोनों टर्म्स में अभी कंफ्यूज हो या समझो. ठीक है, लोकली इन द सेंस कि यार जो हमारे अभी लोकल सिस्टम में प्रेजेंट है, अगर उस पर हमें कुछ काम करना है, इफ यू वांट टू वर्क ऑन आवर लोकल सिस्टम टू मेंटेन द वर्जन कंट्रोल, देन वी यूज गिट. एंड इफ यू वांट टू वर्क with a team for 4 to 5 people, 10 people, then we use GitHub. है ना? In layman term,
I want that आप ये समझो. Now let's start with the Git part. Okay, let's start with the Git part. What is Git? Git is a distributed version control system. What is distributed version control system? Distributed version control means, when we make any software, when we code any functionality over our system, okay, that particular code or that particular functionality have some versions. ठीक है, suppose मैंने एक code करा, ठीक है, and that particular code is the version 1. जैसे हमने सुना होगा अभी पबजी आया तो पबजी आया तो पबजी का वर्जन 2 आ गया, पबजी का वर्जन 3 आ गया, या हमारे पास एक नया अपडेट आया. वो अपडेट क्या होता है? दैट्स अपडेट ऑफ वर्जन्स. ओके, दैट इज नोन एज वर्जन. व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव? See guys, in the industry, in the IT industry, we have two type of systems exist. One is centralized and one is distributed. What is centralized? When we're talking about centralized systems are those systems जिसका सेंट्रल में सर्वर होता है, एंड एवरी डेवलपर कैन एक्सेस दिस पर्टिकुलर सर्वर. सपोज दिस इज अ डेवलपर 1, दिस इज अ डेवलपर 2, एंड दिस इज डेवलपर 3. ठीक है, ये डेवलपर्स क्या कर रहे हैं? दीज डेवलपर्स आर एक्सेसिंग दिस पर्टिकुलर सर्वर. ठीक है, दिस पर्टिकुलर सर्वर है ना. एंड okay, and when these server are existing by n numbers of developer on a particular time period, that is a centralized system, or we can say centralized version control system, जो कि हमारे GitHub वाली चीज में होता है. जब हम GitHub यूज करते हैं, बिग बकेट यूज करते हैं, either we are using GitLab, that time we are using the centralized version control system. But when we are working on Git, क्योंकि हम अपनी सिस्टम पे कर रहे हैं, that time we use distributed version control system. Okay, so let's move forward and understand what Git do for us basically. Git क्या करता है यार? मेरे ये बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी लाता है. सपोज हम इस पूरे सेशन में वी आर टॉकिंग अबाउट आवर वेबसाइट. ठीक है, एक बेसिक वेबसाइट की बात करते हैं. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट Amazon. वी टॉक अबाउट Amazon की फंक्शनैलिटी के ऊपर बात करेंगे, और गिट के साथ उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट Amazon. तो Amazon में वी हैव लॉग इन. ओके, वी हैव रजिस्टर पेज. ठीक है, वी हैव पेज वेयर वी कैन फ्रॉम वेयर वी कैन बाय some books. So there is a separate place for books, there is a separate place for grocery. Okay, and n number of things we have. Okay, n number of pages we have. Okay, let's talk about the developer side term. अब यार डेवलपर होता है ना, and when the developer is doing work, suppose this website Amazon is developed by 30 to 40 developers, है ना, and these 30 to 40 developers are working simultaneously or parallelly, okay, on this particular website. तो इसका मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि we have 30 to 40 developers to develop this Amazon.com or .in. Okay, and we need all these functionality, okay, in our website. Okay, and ऐसा तो नहीं होगा कि 30 all the 30 developers are developing login, all the 30 are developing register page, all the 30 are developing book. Okay, some of them are developing the login page, some are developing our registration page, some of them are working on the back end, okay, part, some of them are developing on the deployment part, and so on and so forth. Okay, so let's try to understand ki if the developer wants to work, okay, if the developer wants to work in a collaborative manner, so how they can work. Okay, so let's try to understand what Git provides. Git is the content tracker for us. It stores all the code and all the changes what we have done in the code. Suppose मैं अपने गिट पे काम कर रहा था. एट 10 o'clock आई पोस्ट द लॉगिन पेज. ठीक है, देन आई रियलाइज कि लॉगिन पेज में मेरे को ये बटन चेंज करना है. देन एट 10:30 आई हैव अपडेट द लॉगिन पेज. ठीक है, अपडेट द लॉगिन पेज, दिस पेज, इस वाले पेज को. देन एट 11 o'clock, दिस इज एन दिस इज अ वे हाउ गिट वर्क. मैं भी आपको सब डेमो के साथ दिखाऊंगा कि कैसे कैसे कर रहे हैं, है ना. द एट 11 o'clock आई अंडरस्टैंड कि यार UI चेंज करता है. आई चेंज अपडेट द UI UX. ओके, आई अपडेट UI UX पार्ट. ओके, एंड सो फोर्थ.
ठीक है, तो व्हाट इट डू, इट ट्रैक ऑल द कंटेंट, एंड व्हेन इट ट्रैक ऑल द कंटेंट, तो हर एक कमिट को जब भी हम अपना कोड पुश करते हैं तो उसे हम कमिट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम कमिट कहते हैं। एंड एवरी कमिट हैव अ यूनिक वैल्यू विच इज नोन एज हैशिंग। ठीक है, तो विल सी अबाउट हैशिंग, व्हाट इज हैशिंग, हाउ they are doing this particular thing, and what are the unique keys जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, वो भी अभी आपको शो करूंगा। ठीक है, उसकी बात भी करते हैं। तो अभी तक मैंने दो चीज सीखी। गिट इज अ कंटेंट ट्रैकर, इट ट्रैक ऑल द चेंजेस व्हाट वी हैव डन ऑन वेबसाइट, इट ट्रैक all the updates what we have on done on our website. It's a distribute version control system. Okay, now try to understand कि git और क्या कर सकता है हमारी, और क्या कर सकता है। सपोज देयर इज एन वेबसाइट जो अमेजोन की है। अभी दोबारा अमेजोन का एग्जाम्पल, अमेजोन ने एक वेबसाइट होस्ट करी, ये वेब पेज होस्ट करा। यहाँ पे उसने लिखा है amazon.com, ओके, amazon इंडिया, ओके, देन दे पेस्ट दे पुट अ फोटो और अ वेक्टर इमेज ओवर हियर, है ना, इमेज ओवर हियर। ओके, नाउ यहाँ पे इफ यू सी अ वेबसाइट, इफ यू सी एनी वेबसाइट, तो व्हाट यू कैन सी, if you see a website, a particular website, so what you can see is what you can see is there is, there is the different header. We can see that there is an registration button, there is a return an order button, there is a cart option. Okay, there's a banner with time days, all these things. Okay, so similarly on our website, suppose we have taken a website and there is a button for home and there is a login button, and we forgot. Okay, now this is a login button on our page, this is a home button, and this is a website where we have written Amazon India and एक इमेज लगाई। मतलब क्या करा हमने, एक वेबसाइट बनाई, यहाँ पे एक Amazon India लिखा, यहाँ पे एक इमेज लगाई, यहाँ पे एक होम बटन लगाया, यहाँ पे लॉगिन लगाया। सिंपल, कुछ नहीं करा, कोई हमने कुछ नहीं करा। ठीक है, एंड वी पुश दिस पर्टिकुलर कोड ऑन आर वी डिप्लॉय दिस पर्टिकुलर कोड ऑन आर क्लाउड। ठीक है, और क्लाउड ने हमें एक डोमेन दे दिया, एंड नाउ दिस वेबसाइट इज लाइव, दिस वेबसाइट इज लाइव। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसर्न। अब मैंने ये देखा कि दिस वेबसाइट इज लाइव एंड नाउ आई डोंट वांट कि ये वाली पिक्चर मुझे अच्छी नहीं लग रही, आई वांट टू चेंज दिस पिक्चर, एंड आई हैव चेंज दैट पर्टिकुलर पिक्चर। तो यहाँ पे Amazon इंडिया लिखा रहा है, यहाँ पे होम बटन है, यहाँ पे लॉगिन बटन। Suddenly my developer called me, sir, what the problem arises is this login button is not working, this login button is not working. So I was saying, oh, now I need to again change this login button. Okay, again this change the bug, fix the bug, and again update deploy this site. Okay, but what I can see here, यार मैंने तो अभी जो इमेज लगाई थी वो तो हटा दिया है यहाँ से इमेज। नाउ till now जो नई इमेज लगानी थी, the new image what I want over here, I don't find that particular image. So there is two option available for me. या तो I down my website till the time I don't got this particular image, or I deploy the website without this particular image. In both the condition my brand got affected. Suppose Amazon मेरा है या मेरा कोई ब्रांड है, तो it got affected. This image is very important. Okay, so what Git give us? Git give us functionality कि if we working on this particular code and if we want कि जो पहले वाला कोड था, ये वाला कोड था, and I want this particular code back, ठीक है, I can revert this code, I can revert this change, I can get the revert of this change. ये भी देखेंगे कैसे करते हैं, क्या करते हैं। बस समझो कि ना, अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ गिट, अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ गिट एंड गिटहब। नीड क्यों है, अगर ये पता लग गया ना नीड क्यों है, तो देयर आर फ्यू कमांड्स जो रन करनी है और ये सब काम हो जाएगा। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, व्हाई वी नीड ऑल दीज। ठीक है, नाउ देयर इज एन अगेन बिग थिंग व्हाट गिट एंड गिटहब प्रोवाइडर्स। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड if there is an if suppose this is me as a developer Sarthak who updated this particular code, then my then maybe this particular person is Max and this particular person is, let's say, Kshitij. Okay, this is Kshitij. Okay, these are the three persons who are working on the code simultaneously. Git give the functionality that a person can, GitHub give the functionality that a person can work on a particular code simultaneously. Okay, so it's a great thing.
Okay, we can do we can deploy or we can commit the changes with different branches. What is branches अभी समझेंगे आगे, what is merging वो भी समझेंगे, merge कैसे करते हैं. ठीक है, अभी तक किसी को भी कोई डाउट हो तो he or she can ask. Okay, okay. Anyone have any doubt? Now we are going to install Git and GitHub. How to install? Okay. Any doubt till now? Anyone? No? Yes or no? Okay. So basically, what I want to tell you that there are two type of repository that exist in the market. Yeah, that exist in the Git. Okay, that is local and remote. Okay, now we are working on our local repository. Then uh, in uh, in some time, approx in next half an hour, we are going to work on remote repository. That is our GitHub repository. Okay, let's try to work on Git completely. Let's try to understand what is Git and all the basic command of Git. Then we jump to remote repository. That is GitHub. Okay, let's first install Git on your system. So for installing Git, type git bash. Okay, only you need to type git bash. There's the one site which is available for you to install in your system. You can use this particular website to install Git. This is gitscm.com. Okay, you can download for your Mac OS, for your Windows, or for your Linux. It's totally up to you. And this is very simple installation. Only you need to click next to install this particular software. Okay, this is very easy and simple. Okay, let me make a folder so that we can work together. Okay, we all can work. Let me. Okay, we will use this particular folder to do all our Git practical. Okay, what you need to do, right click on your desktop and then click on this git bash here. Only you need to click on git bash here and a terminal open in front of you. Okay, I hope that every one of you have done some work with terminal. If not, no problem. We'll going to learn from basics. Okay, now what happened guys, how this particular location will know that or git will know that we are working with it. Okay, कैसे पता लगेगा कि इस पर्टिकुलर फोल्डर को या इस पर्टिकुलर कोड को वी आर मैनेजिंग विद गिट. Is it possible? How it is possible? Okay, so every time when we are using Git, so we say Git init. We use a command Git init. What is what this command do? It initialize the GitHub repo in this particular folder. Okay, this is a very simple command. Okay, now let's try to understand the next part, which is Git status. What is Git status? Git status tell us कि इस particular directory में how many folder we have, how many file we have, and how many files in the staging area. Yeah, in the क्या कहते हैं staging area or in the working area. Now try to understand what is staging and what is working area. Then we are going to jump over the practical part. ठीक है? So there is a basic Git architecture or the GitHub architecture. What we follows is we have a working area, we have a staging area, we have a commit area where we commit a file. Okay, now what are these and how we are going to do work on that, these particular areas. So this is our working area, this is a staging area, this is a committed, this is the commit part or the committed file. Okay. Now let's try to understand what is this. Okay, so let's type a command git status. This will tell you the status of the file. So what we can see, there is no commit yet.
This is the untracked file. What is untracked file? All the files which are present in the working areas are untracked file. These are untracked file. Okay, all the files which you can see over here, this admin.py, py, app, model, test, URL, and everything you can see over here is in the working area. Now, what we need to do is we need to put all the files, all these files into our staging area so that we can commit these files and use this particular version control system. So let's do that. How to do that? We have a command which is git add dot or the file name what we the file what we want to add in the staging area. Suppose this is a basic command git add dot. What git add dot does, git add all the files from working area to staging area, and the dot will help us to add all the files. Dot represent all the files, and if we want a single file to add in our staging area, we name that particular file. So that the file we want to add, we name that particular file on uh, for adding the staging area. Okay. Now see, we have a one file which is in the staging area, and let's see, we'll have again type git status. See, the file has coming to the staging area, and see, it's removed from the working area. Now this admin.py is over here. Okay, earlier it was in this particular segment admin.py. Now it was here on our staging area. Now we need to commit this file so that we can use this particular file and we can track this particular file in our earlier use. Okay, and if you want to add all the files, you can use git add dot to add all the files in your staging area. Git add dot to add all the file in the staging area. Now all the files are in the staging area. Let's see how we can check the git status. Again, we'll use a command git status to check this particular thing. Okay, so this green color represent that all the files are the staging area, and this red color this represent that all the files are in the working area. Let's see if we make a new file. Let's make a new file. Tep is a command to make a new file. Okay, it's a Linux command, so no need to worry. You can make a new file with right click on your Windows and all. Okay, now let's make a new file sarthak.txt. Okay, over here. Okay, I make a new file now. Let's see. अभी भी हमारी जो कमिट आ रही है, जो अभी भी हमारी ये फाइल है sarthak.txt, ये कहाँ पे आती है? आनी वर्किंग एरिया में चाहिए. लेट्स सी. नाउ आवर न्यू फाइल इज इन दी वर्किंग एरिया, तो हम इसको भी ऐड कर लेंगे. ठीक है, तो व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ, हमने अभी तक ये देखा कि वी हैव ऐड अ फाइल. अब आर ऑल दी फाइल्स जो भी होती है हमारे सिस्टम में आर ऑन दी वर्किंग एरिया. जब तक हम इसे गिट ऐड कमांड से अपनी स्टेजिंग एरिया में ऐड नहीं करते, तब तक ये फाइल वर्किंग एरिया में रहती है. ठीक है, जैसे अनट्रैक्ड फाइल कहते हैं. what these files are known as untracked file. Okay, and when we put them to the staging area, that time these files known as tracked file. Okay, now what we are going to do, there is no commit yet. We have not committed a single file, so how we can commit a single file? So we'll use git commit -m. And what is the meaning of -m, guys? -m here is used for giving a message of a particular commit. Suppose आपको किसी को पार्सल भेजना है. Okay, suppose here's a Ram who want to send a parcel to Sham. ठीक है, okay, this boy wants to send a parcel to this particular boy Sham. Okay, so on that particular parcel he need to write anything so that Sham can understand what is it, what is in what this particular box contains. Okay, suppose a developer is writing a code and you have committed all the front end part, all the front end file. Okay, एक वेबसाइट बन रही है, उसका सब फ्रंट एंड का कोड आप कमिट कर रहे हो, तो you give a message कि all the front end functionalities has been updated, and it's a very good matter when you're working on it. Okay, all the files is updated. Okay, जो भी इस फाइल की खासियत हो, update. You can write anything in this particular block. Okay, now
what we can see, all the file, all the file, what we have on the staging area now on the now are on the committed session. Now or on the committed session. Okay. In this particular section, when a file arise or come, okay, at that point of time, we can manage or use each and every functionality of Git and GitHub. That is, you know, all the functionalities. Either it's a distribute functionality, distribute version control functionality. Either it's manage all these times and all time span and all after the commit we have done. So let's see what we have done. There's nothing on the there is nothing to commit. Working tree screen. So there's one command git log. All the commit you will see over here. See, this is a commit with a proper hash code. This is a hash code, which is a unique code which is generated after every commit. Okay, let's make a file again very fast so that you can understand that every time we commit our file, it is having a different hash code. Okay. So let me do very okay. Now let's do some git log. See, this is a commit message what we have done. This is a commit message. See, the hash code is different from this particular different. Okay, and what is this? Head to the master. If anyone of you have studied about linked list, so GitHub is basically following the data structure that is linked list. How it is following? It's following the data structure LinkedIn. Okay, it's have a head or a tail, and head contain the data and tail contain the different links. So head is having a data, which head here head is referred to master. Head contain a data. This particular data commit data. Okay. So this all about the basic command while we are working. This is all about the installation. Okay. Any doubts still here? Or I can continue. It will be great if anyone have any doubt, and I can have. Okay, you can confirm the version of Git, or you can confirm the either Git is installed in our system or not with the help of git ---- version command. Okay, you can also use git help if you are a beginner. If you don't know any command about this, you can use git help. Here you will get all the commands which we are using today. Okay, git add we have used till now. Okay, we have used git log, git status. Okay, and you can use git show. Okay, see, it's a file. Git show help us to track the commit, the author name, the date, plus the commit message, plus what we can see, the new file, the index value, and each and everything. It's a upgraded version of Git status. Okay, it's a big version of Git status. Now today we are going to use all these when we are going to collaborate with GitHub. Okay, then we are using all these three commands. Okay, so let's start. Let's move forward. If anyone has any questions, anyone have any questions? Guys, stop questions. Okay. We have to do authorization before starting. How? What type of authorization? What type of authorization? Like email ID? Yes. If you are working on GitHub, then there is a need for authorization. If you are working with simply with Git, so if you want to, you can give. If you don't want, like I am working on GitHub and Git both, so there is an authorization occurs over here, but authorization we are going to take in upcoming session. Oh, upcoming talk. Okay, तो authorization आएगा जहाँ पे हम git initialize करेंगे replace करेंगे तो authorization authorize. अभी तक किसी को कोई डाउट हो? अभी तक के टॉपिक्स में किसी को डाउट? One thing we can do is git log. अभी तक हम ये लिख रहे थे, ठीक है? And if we want a log in a single line, so we use git log
hyphen hyphen one line. That's a command we can use, and we will get the log in one line. Okay, तो यहाँ पे हम ये author name date file कुछ नहीं चाहिए हमें सिर्फ ये चाहिए था। देखो एक लाइन में यहाँ पे हमारे पास एक इसकी यूनिक कोड आ गया, हमें पता लग गया कि वेयर इज अ मास्टर और हेड, वी नो गेट टू नो अबाउट द commit message. This is something that we have. Let's move to the next part, which is git branch. Okay, before moving forward, I again want to ask if anyone have any questions with him. Okay, so this one, no, email ID. Anyone have any questions? Yes or no? Simply yes or no. No. Okay, I want all the guys to be attentive in the session. Great. Let's see. Here is a command to clear your terminal. You can use. Okay, it will be very useful. Okay, so there is a command get config hyphen hyphen global. Okay, user dot name, and here you write your name. Suppose my name is Sarthak, and मेरा user पहले से configure है, तो I will not configure my username again. Okay, so here you can configure your username, है ना. It is very important to configure your username अगर आपको अपने as an author काम करना है. And then suppose I am using my email address, तो पहले तो आपको ये क्लिक करना है, config username, वहाँ पे अपना username डालना है, ठीक है. Then user email, this is the second command what you can use और configure our username, ठीक है. It's a very simple command. जब भी आप GitHub यूज करोगे तो ये कमांड आएगी, ऑटोमेटिकली आ जाती है अगर आपको यूजरनेम कॉन्फिगर, ठीक है. नाउ अ बिग थिंग, ब्रांचिंग. यार ब्रांचिंग क्या होती है? आज तक समझ नहीं आया ब्रांचिंग क्या होती है. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है लोगों को ब्रांचिंग के ऊपर रिलेटेड, ठीक है. तो आज समझ आया ब्रांचिंग, ठीक है. ब्रांचिंग इज समथिंग like this. What happened, guys? Suppose there is a developer 1, there is a developer 2, there is a developer 3. ये एक कोड पे काम कर रहे हैं. These 3 are working on Amazon.in, ठीक है. They want to make a website Amazon.in. Okay, now they are working on it. Okay, suppose this person dev 3 is working on the login and registration part. Okay, this person dev 2 is making the dashboard for the users, and this person is making the dashboard for the shopkeepers, those who going to list their product on the Amazon, ठीक है. ये वाला बंदा किसके लिए बना रहा है? यूजर्स के लिए, ठीक है. ये लॉगिन रजिस्ट्रेशंस बना रहा है, ये शॉपकीपर बना रहा है, शॉपकीपर के लिए डैशबोर्ड बना रहा है. एट द एंड ऑफ द डे लॉगिन रजिस्ट्रेशन हमें यूजर के लिए भी चाहिए होगा. एट द एंड ऑफ द डे लॉगिन रजिस्ट्रेशन हमें शॉपकीपर के लिए भी चाहिए होगा. तो ऑल दी टीम्स आर वर्किंग साइमल्टेनियसली, बट फंक्शनैलिटी अलग अलग है, बट एट द एंड ऑफ द डे दे नीड टू इंटीग्रेट ऑल इन वन, ठीक है. तो व्हाट हैपन, सपोज देयर इज एन पर्सन dev 1 ने कोड करा, ठीक है. dev 1 ने कोड करा एंड इट पुट द कोड ऑन दिस पर्टिकुलर पेज. यहाँ पे हमने, ये मास्टर ब्रांच है हमारी. मास्टर ब्रांच क्या होती है? मास्टर ब्रांच इज द मेन ब्रांच ऑन विच वी आर वर्किंग. जो टर्म समझ में नहीं आ रही, एट द एंड ऑफ दिस सेशन, टिल द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल गेट ईच एंड एवरी टर्म, ठीक है. तो अभी तक ये समझो कि मास्टर ब्रांच वो ब्रांच होती है जहाँ पे सारा कोड होता है, ठीक है. जहाँ पे प्रोडक्शन कोड होता है. प्रोडक्शन कोड कौन सा होता है कि जहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे अगर हमें डिप्लॉयमेंट के लिए कोड लेना है तो हम इस ब्रांच से लेंगे, है ना. तो हमने 3 ब्रांच अलग अलग बनाई, डेवलपर ब्रांच, डेवलपर 2, डेवलपर 3. तो ब्रांचिंग क्या होती है? हमने डेवलपर 1 को एक अलग पार्ट दिया, डेवलपर 2 को एक अलग ब्रांच दी, डेवलपर 3 को एक अलग ब्रांच दी. डेवलपर 1 क्या कर रहा है? लॉगिन, जब उसने क्या करा, लॉगिन बना लिया, ही टेस्ट द लॉगिन, है ना. इन इंडस्ट्री वी हैव
एन नंबर ऑफ टेस्टिंग, दैट इज यूनिट टेस्टिंग। सबसे पहले डेवलपर करता है यूनिट टेस्टिंग, फिर उसके बाद टेस्टर होता है, टेस्टर के पास जाता है कोड। ठीक है, दिस इज एन फिर उसके बाद टेस्टिंग के बाद टेस्टर क्या करता है, टेस्ट करता है कोड विद एन नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, है ना, विद एन नंबर ऑफ टेस्ट मेथड, रिग्रेशन टेस्टिंग होती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, एन नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। देन इस डेवलपर के पास आता है कि योर कोड इज करेक्ट, देन दिस पर्टिकुलर कोड इज पुश्ड ऑन दी मास्टर ब्रांच। सिमिलरली ये वाले डेवलपर भी पुश करता है, ये वाले भी डेवलपर करता है। तो व्हाट हैपन नाउ गाइस, हमने कोड करा, हमने कोड करा एक नई ब्रांच पे, अपनी एक ब्रांच बनाई हमने, यहाँ से बेस कोड लिया, अपनी एक ब्रांच से कोड करा, कोड करने के बाद फंक्शनैलिटी चेंज करी और फंक्शनैलिटी पे पुट करा। सेम डन विद दिस पर्टिकुलर पर्सन एंड सेम डन विद दिस पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, तो दिस इज नोन एज ब्रांचिंग। कैसे क्रिएट करते हैं, क्या कर सकते हैं ब्रांचिंग से, अभी देखते हैं, डेमो देखते हैं, लाइव डेमो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको गिट के साथ दिखाऊंगा ब्रांचिंग का, और फिर मैं आपको यही ब्रांचिंग स्ट्रेटेजीज जो है मैं आपको गिटहब के साथ दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले गिट के साथ देखते हैं। तो कभी भी हमें गिट पे ब्रांच चेक करनी है तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि हमारी गिट हाउ मेनी ब्रांच यू हैव। दिस इज अ नॉर्मल थिंग, दिस इज अ नॉर्मल व्हाट वी कैन से दिस command to check how many branches will we have. We have a single branch that is master branch. ठीक है, तो ये default branch होती है जो हमें मिलती है while we initialize के। Okay. Now we want to make a branch, so we can make branch with command git branch and the branch name. So branch name is सार्थक। मैंने branch बना ली, है ना, मैंने branch बना ली, the name of सार्थक। Now I'll see again the git status. Oh, git branch. Git branch. How many branch now I have? I have 2 branch. One for Sarthak and one for master. ठीक है, यहाँ पे भी हमें दिखता रहता है कि on which branch we are working now. We are working on master branch. ठीक है, and if we want to change our branch, so then we use git checkout. Okay, and the branch name. Suppose we Sarthak branch पे काम करने जाना है. This is Sarthak. तो ऑल दी थिंग्स आर सेम ओवर एयर ऑल्सो। यहाँ पे भी हमें इतनी सारी फाइल दिखेगी। अगर हम चेकआउट करके मास्टर पे जाते हैं तो मास्टर पे भी सेम दिखेगा, बट जो हम जो हम अपनी सार्थक वाली ब्रांच पे करेंगे, जो हम अपनी डेव 1 वाली ब्रांच में चेंज करेंगे, वो किसी को नहीं। सपोज आई वांट टू डिलीट दिस पर्टिकुलर ब्रांच, तो हाउ कैन आई डिलीट दिस पर्टिकुलर ब्रांच? गिट ब्रांच -d एंड ब्रांच का नाम सपोज सार्थक। ठीक है, दिस ब्रांच इज डिलीटेड। नाउ लेट्स सी कि ये ब्रांच एग्जिस्ट करती है या नहीं। हेल्प कमांड git branch, सी git सार्थक ब्रांच है। ठीक है, नाउ जो सिनेरियो लिया था वही सिनेरियो बनाते हैं। हमने सिनेरियो में क्या कहा था कि dev 1 है, dev 2 है, dev 3 है, लेट्स मेक 3 ब्रांचेस फॉर डेवलपर। ओके, तो देयर इज एन कमांड git checkout जिससे हम ब्रांच चेंज करते हैं, लेकिन अगर उसके साथ इफ यू यूज -b, है ना, एंड द नेम ऑफ द ब्रांच, है ना, तो what it will do, it will make a branch dev 1 and then automatically switch the branch. Okay, let's make a branch dev 1 and automatically switch the branch. Similarly, what we do, the master, always make a branch on master branch. Either you can make to any particular area, but don't make that, because sometimes it create conflicts and it create, it create some glitches. So don't, every time you make a branch, make from the master branch. Okay, branches. We have 3 branches, dev 1, dev 2, dev 3 and master branch. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे का काम। तो अब हमारे पास 3 ब्रांचेस हैं। नाउ वी आर वर्किंग ऑन दीज 3 ब्रांचेस। ठीक है, हम 3 ब्रांचेस में से 3 अलग अलग कोड करेंगे। ठीक है, और तीनों कोड को एक साथ जोड़ेंगे, जैसे हम मर्ज करेंगे। मतलब क्या कि सपोज ये मेरा डेवलपर 1 है, और ये मेरा मास्टर ब्रांच है। सबसे पहले मास्टर, इसने एक कोड कर रखा है। ठीक है, इसने एक कोड कर रखा है। नाउ डेवलपर 1 डन अ पर्टिकुलर कोड, इसने भी डेवलपर 1 ने कुछ कोड करा। नाउ व्हाट वी डू, हम इसे मर्ज कर देंगे और एक नया कोड पे बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे dev 1 और मास्टर का कोड मर्ज हो चुका है। ठीक है, ये मास्टर हमारी लाइन चल, मास्टर ब्रांच और डेवलपर 1 का। सिमिलरली अगर डेवलपर 2 यहाँ पे काम कर रहा है, तो हम इस वाले कोड को
डेवलपर 1 के कोड और डेवलपर 2 के कोड को कंबाइन करके एक ब्रांच बना दें। ठीक है, तो ऐसे करेंगे सम टाइम हेयर, मतलब दिस इज वेरी वेरी फेमस टर्म दैट इज मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, बहुत सारों की आई भी होगी, हाउ टू रिजॉल्व दैट, हाउ टू फाइंड दैट, और क्यों आती है ये भी आज हम देखेंगे। पहले हम खुद कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे और फिर उसके बाद खुद ही सॉल्व करेंगे, कितना मजा आता है। ठीक है गाइस, तो आ जाते हैं, चलो यार, गेट चेकआउट, गेट चेकआउट, डेव वन, सबसे पहले डेव वन के पास जाते हैं। डेव वन के पास जाके एक लॉगिन पेज बनाकर आते हैं। ठीक है, गेट वन लॉगिन पेज बन गया है। सी गाइस, डेव वन में लॉगिन डॉट टीएक्सटी एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम, जब भी हमें मर्ज करना हो, जब भी हमें मर्ज करना हो मास्टर ब्रांच के साथ, तो हमें मास्टर पे आना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स कम ऑन मास्टर अगेन। ओके, लेट्स कम ऑन मास्टर अगेन, गेट्स चेकआउट मास्टर। नाउ वी आर ऑन मास्टर ब्रांच। यहाँ पे देखेंगे हमें लॉगिन डॉट टीएक्सटी दिखेगा, दिखेगा। बट जब हम गेट स्टेटस करेंगे ना यार, गेट स्टेटस करेंगे ना यार, सॉरी, क्या लिखा है? तो हम गेट स्टेटस करेंगे तो भी हमें दिखेगा, गेट स्टेटस पे भी दिखेगा। लेकिन अगर हम, अगर हम और अगर हम यहाँ पे करते हैं तो दिखेगा या नहीं दिखेगा? तो भी दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि दिस, वी आर वर्किंग ऑन आर लोकल रिपोजिटरी। ठीक है, अगर लोकल रिपोजिटरी पे वर्क कर रहे हैं तो हर जगह चेंजेस दिखेंगे, बट टू मेक दैट चेंजेस ऑन आर पर्टिकुलर फाइल, वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम सिर्फ और सिर्फ कर सकते हैं जब हम इसे मर्ज करें। तो गेट मर्ज डेव वन ऑलरेडी अपडेटेड। ठीक है, ऑलरेडी अप टू डेटेड। व्हाई इट इज ऑलरेडी अप टू डेटेड? क्योंकि हम, बताया मैंने आपको कि हम लोकल रिपोजिटरी पे काम कर रहे हैं, हम रिमोट रिपोजिटरी पे काम नहीं कर रहे। तो टाइम आ चुका है गाइस गिटहब एक्सप्लोर करने का, गिटहब के ऊपर जाने का। तो लेट्स मूव टू दैट। ओके, यू कैन थिंक दैट कि ब्रांच इज अ कॉपी ऑफ मास्टर। हाँ, ब्रांच इज अ कॉपी ऑफ, नो नो, ब्रांच इज अ कॉपी ऑफ मास्टर, बट टू ऐड अ डिफरेंट फंक्शनैलिटी, टू ऐड अ डिफरेंट, कौन सी लैंग्वेज है? विच लैंग्वेज यू आर टॉकिंग अबाउट? Which language you are talking about? Branch doesn't mean that it's a copy of master. Okay, we can say it's a 10% true. Branch is a copy of master, but all thought we are making the branches for, developing new uh, features and all. Okay, so that uh, master branch is a branch for production. Okay, so if we want to deploy any application, if we want to integrate any application, so we'll use master branch. We don't use any other branch. Okay. So if there is an error with master branch, so might be possible it comes in front of us. क्या कौन सी लैंग्वेज से बता रहे हो तो, what language you are talking about? I think this is a basic Linux thing what you are doing. Git एक कमांड है, ये कमांड है, लैंग्वेज तो मैंने कुछ यूज ही नहीं करी है। And there's no need for any language when we are working on Git. Okay, if you are making a new repository, if you don't add a readme file with you, so what happened, guys? It will tell you all the instruction, but I will add readme. Okay, I don't want any instruction to. Now this is the GitHub page. This is GitHub. What is GitHub? Till now we are working on the local repository where we push our code, where we make our code. Till now we are working on our local repository. But now we want to make shift to the remote repository so that different developer can contribute on our particular page or our particular site. Okay, so everyone have GitHub account, or I need to explain how to make a GitHub account? Everyone have a GitHub account, or I need to tell you more about GitHub account, how to make that and all? We have some. Okay. Don't call me sir. I'm Sathik Jain, guys. Call me Sathik. Okay. Great, guys. Great.
मजा आ रहा है। तो दिस इज वन रेपो. Okay, you can be the contributor of this particular repo. So I'm sharing you the link. Okay, I'm sharing you the link. Okay, okay, don't no problem. If you have Sumit, you have make the account. If you don't know how to start, then I will tell you. Okay, so come to GitHub. Okay, log in with GitHub, and you will see this particular screen. Okay, this particular screen. And if you have make a new account, that time it uh, this screen is blank for you. Okay, now what you need to do, you have to click on new repository. New repository. Here's a new repository. What is a new repository, guys? कि अगर किसी ने ड्राइव के साथ काम करा हो, या if anyone has worked with any of the tools, DevOps के tools के साथ, या DevOps भी छोड़ते हैं, if anyone have an account on Google Drive, तो Google Drive पे when we make a Google Drive ना, तो हम अपने फोल्डर का नाम देते हैं. This repository means a folder. हमने फोल्डर का नाम दिया. उसके बाद फोल्डर पे अगर डिस्क्रिप्शन देना तो हम बता सकते. इफ यू वांट कि आपकी रेपोजिटरी पे, आपकी गिटहब पे जो जो लोग हैं, सपोज मेरे गिटहब पे बहुत सारे लोग हैं अभी यहाँ पे 51 फॉलोअर्स हैं मेरे, ठीक है, अभी पे गिटहब, ठीक है, मेरी पास 108 रेपोजिटरी में ये रेपोजिटरी सब देखेंगे, ठीक है. व्हाट आई डू आई मेक इट पब्लिक. अगर सपोज देयर इज अ रेपोजिटरी, सपोज दिस इज माय रेपोजिटरी, जो कि मैं सबको नहीं दिखाना चाहता, ठीक है, दिस इज माय सब इंटर्नशिप रेपोजिटरी या कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट रेपोजिटरी है, तो मैं इसे प्राइवेट कर देता हूँ. यू कैन डू एज, ठीक है. इग्नोर वगैरह की जरूरत नहीं है, एंड यू नीड टू क्लिक ऑन दिस बटन क्रिएट रेपोजिटरी. तो आपके पास कुछ ऐसी रेपोजिटरी निकल कर आ जाए, ठीक है. नाउ अब हमें इस पे काम करना है, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं इस पे काम, ठीक है. एक GUI बता देता. GUI इज वेरी सिंपल ऑन गिट एंड गिटहब. सपोज आपको अपना कोड अपलोड करना है, सपोज आपको अपना कुछ कोड अपलोड करना है, फाइल अपलोड करनी है, तो व्हाट यू कैन डू इज अपना कोड यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, आप यहाँ पे भी काम कर सकते हो. सपोज कुछ भी लिखो फाइल, और जो हम कमिट कर रहे थे ना, अभी कमिट कर रहे थे, जो हम कमांड लिख रहे थे गेट, ये वाली कमांड गेट कमेंट हाइफन, और ये मैसेज लिख रहे थे कमिट का, जैसे साथ है, तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे भी हम कमिट ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं लिखना, मैसेज लिखना है जो भी कमांड का. सपोज मैंने लिखा न्यू फाइल, और ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी. यहाँ पे फाइल का एक्सटेंशन दोगे, सपोज ये मेरी py फाइल है, अगर मैं पाइथन में py करूँगा तो एक्सटेंशन py हो जाएगा. अगर मैं txt करूँगा तो इसका एक्सटेंशन txt हो जाएगा. अगर मैं cpp करूँगा तो इसका एक्सटेंशन cpp हो जाएगा. मतलब C++ की फाइल. तो इट्स टोटली डिपेंड कि हम इसे क्या होगा, ठीक है. तो यहाँ पे हमारी फाइल आ चुकी है, हमारे पास एक फाइल आ चुकी है, मस्त सी फाइल आ चुकी है, हमने कोड क्रिएट कर लिया, ठीक है. अब इस वाली रेपोजिटरी को हम अपने गिटहब के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, ये भी थोड़ा देख लेते हैं. चलो ठीक है, तो लेट्स सी हम कैसे कर सकते हैं. यहाँ पे एक मैं नया फोल्डर बनाता हूँ, आपको पता लगा. यहाँ पे आना है, आपको क्लिक करना है गेट बैश है, ठीक है. दोबारा वो स्क्रीन खुल जाएगी ब्लैक कलर की. मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ. माइट बी मेरे काम की वो वक्त ज़्यादा क्रिएट करना. लेट्स क्रिएट अ फोल्डर ओवर हियर. अगेन टाइप अ कमांड गेट इनिट, ठीक है. गेट इनिट से क्या हुआ, अभी तक देखो यार कोई फोल्डर नहीं है. जैसे मैंने गेट इनिट करेगा, सॉरी, जैसे मैंने गेट इनिट करूँगा, यहाँ पे एक फोल्डर आ जाएगा डॉट गेट. यू कैन सी जैसे गेट इनिट करा, अभी तक यहाँ पे मास्टर कहीं नहीं दिखा रहा था, बट नाउ मास्टर लिखा गया क्योंकि हमारा मास्टर है. तो विल यूज अ कमांड गेट क्लोन. गेट क्लोन से क्या होता है, वी एक्सट्रैक्ट होल ऑफ दिस रेपोजिटरी, मतलब पूरी की पूरी रेपोजिटरी हमारे लोकल सिस्टम पे. अब हम अपनी रेपोजिटरी को क्लोन कर रहे हैं, क्लोन करके अनपैकिंग क्या होती है यार, ये देखो रिमोट रेपोजिटरी के पास गया, जो भी एलिमेंट थे काउंट कर, सपोज 3 एलिमेंट थे, 6 एलिमेंट थे, ऑब्जेक्ट थे, काउंट करे, डाउनलोड करा, अनपैकिंग मतलब अनजिप करा, और हमें दिखा दिया कैसे. ये टैग फोल्डर रिकॉर्ड हो रहा है, चुप रहे. ठीक है गाइस, ये हमें दिख चुका है. अब क्या करना है, हम इस फोल्डर के अंदर आ जाना, जैसे मैं आ चुका हूँ इसमें, ठीक है. अब यहाँ पे मैं सपोज एक नई फाइल क्रिएट कर, कुछ भी नहीं,
ठीक है, चलो अपनी कमांड लाइन से ही करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर आ गया। अब नई फाइल क्रिएट करते हैं कुछ भी, है ना। सपोज टच ठीक, हमारी एक नई फाइल क्रिएट हो गई नॉट txt से। ठीक है, नाउ अभी हमारे यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई फाइल नहीं है, कोई भी फाइल नहीं। अब हमें क्या करना है, अब हमने एक फाइल क्रिएट कर दी है। दोबारा वो एक पुराने वाला मेथड, हमने क्या बताया था कि अभी तक ये वाली जो फाइल है ये हमारी वर्किंग एरिया में है ना। कैसे पता लगेगा, गेट स्टेटस कमांड से। गेट स्टेटस कमांड से क्या पता लगा कि हमारी अभी वर्किंग एरिया में है, क्योंकि रेड हो रहा है। अब इसे हम करेंगे हरा, मतलब ग्रीन करेंगे। अब इससे देखते हैं कैसे करते हैं ग्रीन। गेट एट डॉट डॉट नाउ सी कि ग्रीन हुआ या नहीं। ओके, वेरी नाउ विल कमिट दिस फाइल, गेट कमिट आईफोन एंड आईफोन और मैसेज कमिट मैसेज करेंगे फाइल। दोबारा चेक कर लेते हैं स्टेटस से। ये कहता कुछ नहीं है पुश करने के लिए। लेट्स सी कि इसने लॉग एक हैश जनरेट करा या नहीं करा। बिल्कुल करा है, ये रहा है हैश। अब हैश से ना हमें क्या क्या पता लगता है, देखो। गिट इनिट, जब हमने क्या कौन सी फाइल कहाँ से ली है। सपोज हमने ये फाइल यहाँ से उठाई है तो हमें सब पता लगता है लॉग से। लॉग सब बताते हैं हमें, लॉग टाइम भी बताते हैं, डेट एंड टाइम बता रहा, हर एक कमिट का टाइम बता रहा। ठीक, बहुत मस्त चीज़ है यार, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। यहाँ पे हमने इस फाइल में हमने कौन सी कमिट कब करी थी, देखो 7 मिनट पहले करी थी ये वाली, 3 मिनट पहले की। ठीक, ये भी कमिट करी, इनिशियल कमिट, इनिशियल कमिट मैसेज। फिर न्यू फाइल हमने क्रिएट कर दिस इज न्यू, देन विल डू अ थर्ड कमिट दैट इज न्यू फाइल अपडेट। सी द ब्यूटी ऑफ गिट, बहुत मजा आएगा। ठीक है, नाउ विल यूज अ कमांड which is git remote add origin। अब मेरे से कोई नहीं पूछेगा कि रिमोट का मतलब क्या होता है। रिमोट का मतलब जब हमें अपनी गिट हब को हमारे लोकल से रिमोट्स को कनेक्ट करना हो तो हम गिट रिमोट यूज। ऐड ओरिजिन का मतलब क्या है, ओरिजिन की जगह आप सार्थक लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। आपको उसको यूआरएल को नाम देना है, सिर्फ और सिर्फ, है ना। आपको लोकेशन बतानी है कि आपको कहाँ क्या ऐड करना है। गेट रिमोट ऐड ओरिजिन। ठीक है, अभी तक किसी को कोई डाउट है ना। क्लिक करा, ये कहता है रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, क्योंकि हमने इससे पुल करा था, हमने यहाँ से क्या करा था, क्लोन करी थी रेपोजिटरी, तो ये कहता है ओरिजिन एग्जिस्ट है, लेकिन फिर भी हमने डाल दिया इट नॉट एग्जिस्ट डाल। नाउ व्हाट वी आर यूजिंग, गेट। हम सिंपल कमांड यूज करेंगे, गेट पुश ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन में पुश करेंगे। नाउ हम अपना ब्रांच का नेम बताएंगे। सपोज वी नीड टू पुश ऑन ओरिजिन मास्टर, हम यहाँ से मास्टर में पुश करेंगे। गेट पुश ओरिजिन मास्टर इज मास्टर। ठीक है, तो देखते हैं। अभी तक देखो, अभी तक हमारे पास ये नहीं आया। जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, हमारे पास हमारी नई फाइल आ जाएगी, न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी हमारी। ठीक है, आई थिंक इट इज वेरी वर्किंग वेरी। ये भी अच्छा है। क्या था वो, जूम नाउ डेटा साइंस मास्टर क्लास। ओके ग्रेट। ओके, तो वी हैव डन फ्यू स्टेप्स। हमने गिटहब कनेक्ट कर लिया है, हमने ब्रांच में सीख लिया। चलो एक चीज बहुत अच्छी बताता हूँ, होपफुली नहीं बताई होगी किसी ने, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना किसी को अच्छा नहीं लगता। बट आप जब गिटहब यूज करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट। सपोज यहाँ पे मैं बनाता हूँ dev1, आप यहाँ से भी ब्रांच बना सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप ब्रांच बनाओ dev1। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट करके एक ब्रांच बनाओ dev2। ठीक है, तो आपकी अलग अलग ब्रांच हो गई। सपोज ये मास्टर ब्रांच हो गई, ये dev1 हो गई। सपोज आपने देखो अभी क्या करा आपने, एक एक नॉर्मल फाइल बनाई dev1 ब्रांच, नॉर्मल फाइल, कोई भी फाइल, ये अपनी फाइल है ना। यहाँ पे लिखो dev1 फाइल। या एक काम करते हैं,
आपको फाइल में चेंजेस करके दिखाता हूँ। अगर आप नई फाइल बनाओगे तो फिर आपको सपोज ये वाली फाइल है code.cpp, मैं इसमें कुछ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ चेंजेस बाय डेव वन। ठीक है, चेंजेस बाय डेव वन, मैंने चेंज करा, अपडेट करा, कोड हो गया अपडेट। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर नीड टू डू इज, यहाँ पर आएंगे पुल रिक्वेस्ट पे। पुल रिक्वेस्ट, ये जो चीज होती है ना पुल रिक्वेस्ट, ये हमें आके अपने इस पे कर लेते हैं गिटहब पे। ठीक है, ये कहता है कंपेयर एंड पुल, विच मीन्स कि अभी हमें कंपेयर करना है हमारे डेब में क्या है, डेब में क्या नहीं है। ठीक है, नाउ वी क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट, हमने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी डेव वन से अपने मास्टर पे। ठीक है, तो पुल रिक्वेस्ट का मर्ज का मतलब क्या होता है, मर्ज का मतलब क्या है, देखो अभी एक चीज दिखाता हूँ। अभी हम मास्टर पे हैं, अभी हमारा कोड डॉट सीपीपी हमने खोला, तो यहाँ पे वो लाइन लिखी नहीं आ रही चेंजेस बाय डेव वन, नहीं लिखा आ रहा। बट अगर हम अपनी पुल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे जो मैंने अपनी डेव वन से भेजी है, मर्ज पुल रिक्वेस्ट, कंफर्मिंग मर्ज, हमने पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट और बहुत कुछ। ठीक है, नाउ वी कैन सी दिस अपडेटेड चेंजेस बाय डेव वन, चेंजेस बाय डेव वन इज सक्सेसफुली डन। ठीक है, अब एक चीज और करते हैं, अब डेव टू पे आते हैं, लेकिन डेव टू पे देखो चेंजेस नहीं हुए होंगे। सी, डेव टू पे चेंजेस नहीं हुए, डेव वन ने जो चेंजेस करे हैं मास्टर ब्रांच पे, लेकिन डेव टू पे नहीं हुए। ठीक, तो अब क्या होगा, जब मैं इसके नीचे करूँगा चेंजेस बाय डेव टू, तो गिटहब समझ नहीं पाएगा, गिटहब ऑटोमेटिकली समझ नहीं पाएगा। जब मैं पीआर जनरेट करूंगा सी कंपेयर एंड तो गिटहब समझ नहीं पाएगा। सी व्हाट इज से कैन नॉट मर्ज ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली मर्ज नहीं कर सकता। ठीक है, बट हम पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हम अपने दोबारा मास्टर ब्रांच पे आते हैं, एक बार मास्टर ब्रांच पे आ गए हम, पुल रिक्वेस्ट पे आए, इस पुल रिक्वेस्ट को खोली, इस पुल रिक्वेस्ट में देखा कि क्या हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, दिस ब्रांच हैज अ कॉन्फ्लिक्ट दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड। नाउ कम ऑन रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट हैपेंस कि डेव वन ने इसी ब्रांच पे कमिट करके पुल कर दिया, पुश कर दिया। ठीक है, जो डेव टू अपडेटेड नहीं थी, क्यों डेव टू अपडेटेड नहीं थी, लेट्स सी कि डेव टू क्या दिखाता है। जब हम डेव टू खोलेंगे ना, ये क्या कहेगा, दिस ब्रांच इज वन कमिट अहेड एंड टू कमिट बिहाइंड, मतलब दो कमिट पीछे है ये ब्रांच और एक कमिट आगे है, क्योंकि अभी हमने कमिट क्रिएट कर दिया, तो दो कमिट ये पीछे है। अगर देखा जाए तो नॉर्मल वर्ड्स में, तो हाउ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स गाइस, आज बता रहा हूँ, बहुत मजा आएगा, आगे जब यूज करोगे तो याद रहेगा। क्या करना है, ये सब हटा देना, ये जो जितने भी कोड्स लिखे हैं ना मास्टर, सब ये मास्टर वास्टर सब हटा देना। हमें कहना है कि हमें हमें फर्क ही नहीं पड़ता है अभी किसने कमिट चेंजेस करा, जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं ये वाले, ये सब हटा देना। जो मेन फाइल है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगी ऐसे, एंड मार्क एज कमिट। विल सी हमारा मास्टर कोड क्या कहता है, मास्टर आ गया, मर्ज नहीं करना, मर्ज कर देते हैं, मर्ज का मतलब होता है मिलाना, है ना। तो अभी क्या करा है हमने, अभी दिखा देते हैं क्या लिखा है, मर्ज ब्रांच मास्टर टू इनटू डेव टू। ठीक है, सी अब ये कॉन्फ्लिक्ट भी चले गए ब्रांच में। हाँ, दिस इज एन हैंड्स ऑन यार, दिस इज द, यही तो बनाई है ब्रांच मैंने, यहीं से तो बनाई है ब्रांच, ही तो बनाई है, यही तो बनाई है ब्रांच के कॉन्फ्लिक्ट। एक सेकंड, तो व्हाट हैपन नाउ, देखो अब मैं बताता हूँ हुआ क्या है। एक स्टोरी से समझते हैं, स्टोरी। सपोज दिस इज योर फादर, आपके पापा है, आपके फादर। ठीक है, यू आर टू ब्रदर्स, टू ब्रदर्स। ठीक है, ब्रदर वन एंड ब्रदर टू। ठीक है, आपके पापा ने आपको एक टास्क दिया कि यू नीड टू डू दैट पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, आप आए अपने पापा के पास और आपने अपने पापा को, सपोज आपके पापा ने आपको 2 पॉइंट के साथ टास्क दिया, आपके पापा ने आपको बोला कि आपको ये करना है और ये करना है, मतलब आपको ए काम करना है और बी काम करना है। आप पापा के पास आए अपने और आपने अपने पापा को बता दिया कि पापा हमें सी काम भी करना है, आप भूल गए बताना। ठीक है, आपने अपडेट कर दिया, बट P2 को ये नहीं पता कि वी हैव 3 वर्क, है ना। देन ही कम्स टू अगेन अ मास्टर ब्रांच और वो बोलता है कि पापा हमें एक काम और करना है जिसका नाम सी है। तो पापा इज गॉट कंफ्यूज कि भैया इसने भी एक सी बता के गया, ये भी एक सी काम बता के गया, मतलब एक काम बता के गया।
तो व्हाट वर्क वी नीड टू डू, तो इसने क्या करा, यहाँ पे एक मर्ज कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, नाउ हमें क्या करना होता है, अब क्या करा हमने, इसका नेमिंग कन्वेंशन चेंज कर दिया, इसको सी कर दिया, इसको डी कर दिया, काम। तो अभी हमारे पास 4 वर्क है, लेकिन B2 को नहीं पता था, हमारे पास पहले 3 ऑलरेडी थे, तो वो नेमिंग कन्वेंशन डी करता है इसे। ठीक है, अब B2 को भी पता लग गया हमारे पास 4 है, तो उसने डी कर दिया और हमने मर्ज कॉन्फ्लिक्ट हटा दिया। वही करा हमें यहाँ पे, कि हमारे पास मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, हमने आया। ठीक है, और किसी को अभी तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। आई थिंक ये सेशन 1 घंटे से ऊपर का हो चुका है, मुझे मजा आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब जो जो चेंजेस हुए हैं, अब एक चीज और देखिएगा, अब हमारे साथ में कुछ गलत हो गया। हमारे साथ क्या हुआ है, सी हमारा कोड.cpp, कोड.cpp को एक बार खोल के देखते क्या है। कैट कैट कमांड से क्या होता है, जो भी इसको इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर है वो मैं सेलेक्ट, सी हियर वी हैव ओनली रिटन न्यू फाइल, यार हमने सिर्फ न्यू फाइल लिख रखा है, और इसके अंदर अब जो चेंज हो चुके हैं वो ये चेंज हो चुके हैं। क्या चेंज हो चुका है इसके अंदर, ये 2 लाइन और आ चुकी है, ऐड हो चुकी है। नाउ व्हाट, हाउ हाउ टू डू दैट, हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग, या दोनों जगह सेम हो जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल। हम क्या करेंगे, हम एक कमांड यूज करेंगे, गेट fetch origin master class. Now we are fetching the changes. ठीक है, अब इसने फैच करे changes. Now let's see कि आ गई, अभी भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ अभी क्या करा है, फैच करा है। हमने अभी तक इसे मर्ज तो करा ही नहीं, अभी तो हमें मर्ज भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो फैच के बाद क्या करना होता है, मर्ज, जिससे इस डाटा डाटा। ठीक है, नाउ सी अब हो गया है, बिल्कुल सी। तो फैच क्या करता है, इस कोड को हमारे लोकल रेपोजिटरी पे लाता है। मर्ज क्या करता है, इस कोड को हमारे पुराने वाले कोड के साथ मर्ज करता है। तो द वर्क ऑफ फैच इज to extract the code from the remote repository to the local repository, and the work of merge is to merge that particular code to the uh, older code or the older file. ठीक है, तो क्या हम merge और fetch का काम एक ही कमांड से कर सकते हैं? अगर हाँ कर सकते हैं तो एक सेकंड में जल्दी से एक चेंजेस और कर देता हूँ, जिससे हमें पता लगता है। तो बिल्कुल सही पकड़ है, हाँ। वी यूज पुल कमांड, जिससे मर्ज और तो अभी हमारे पास क्या दिख रहा है यार, दोबारा हम कैट करके देखते हैं, कैट कोड बहुत सीधी। ठीक है, अभी ये दिख रहा है, यहाँ पे पुल नहीं दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, वी यूज वी नोट यूज एनी अदर कमांड, वी यूज डैश पुल ओरिजिन। ठीक है, हमें मास्टर ब्रांच चाहिए, ओरिजिन हमने अपना नाम दे रखा है। क्या करा है इसने, पहले पुल करा, ठीक है, फिर इसमें चेंजेस करे। नाउ सी कि चेंजेस हो गए हैं, बिल्कुल चेंजेस हो गए। तो व्हाट इज पुल गाइस, पुल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैच, व्हाट इज पुल, पुल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैच प्लस मर्ज। कई बार हमें होता है कि कोड को फैच करना है, अभी मर्ज नहीं करना, मर्ज बाद में करेंगे, तो हम इसलिए फैच और मर्ज अलग अलग से कुछ। ठीक है गाइस, तो फैच बता दिया, मर्ज बता दिया। अब आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी हो, अब कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सपोज आपको मेरे साथ काम करना है इस रेपो पे, तो क्या करोगे आप इस रेपो को फोक करोगे। अभी मैंने आपको एक लिंक दिया, तो आप इस रेपो को फोक, जो भी आपको जिस भी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ठीक है, ये लिंक दे रहा हूँ, आप में से जो फोक करना चाहे वो फोक कर सकता है। इन इफ एनीवन हैव एनी डाउट नाउ दे कैन आस्क। अब मेरे को जितना समझा रहा हूँ समझा चुका हूँ। ठीक है गाइस, तो आई होप दैट एम आई क्लियर विद, सबको मेरी बात समझ में आई होगी, हर चीज़ समझ में आई होगी, जो चीज़ समझाने की कोशिश करिए। एंड आई होप दैट कि सब कुछ क्लियर क्लियर होगा। अभी जो डाउट है आप पूछ सकते हो। आई थिंक सो मेरा लिंक्डइन हैंडल आ चुका है, यू कैन कनेक्ट विद मी एंड एनी टाइम इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट ऑन माय लिंक्डइन और इंस्टाग्राम।
तो वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूँ। ठीक है, मैं लिंक्डइन में ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो आप कभी भी डाउट पूछोगे मैं रिप्लाई। ठीक है, कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू डेवऑप्स, गिटहब, सी प्लस प्लस, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, एमएल, कुछ भी होगा आप पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, एंड देयर इज वन सरप्राइज जो कि टीम को भी नहीं पता है कि व्हाट द सरप्राइज इज। अभी आई क्रिएट अ न्यू पोस्ट गाइस, आई वांट कि जो भी इस समय इस स्ट्रीम पे शुरू के मतलब हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न डीएसए, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न डीएसए, जस्ट मीन यस और नो इफ एनीवन मी। ओके, जो भी इस स्क्रीन पे सबसे पहले 5 जने कैमरा खोलेंगे, आई विल गिव देम अ फ्री डीएसए कोर्स फॉर नेक्स्ट 5 फॉर नेक्स्ट 1.5 month। आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज ऑफ डीएसए। ठीक है, जो कि पेड सीरीज है, बट जो भी इस स्क्रीन पे पहले 5 जने कैमरा खोलेंगे, आई विल गिव देम। ठीक है, 1 2 2 3, बंद नहीं करना है जब तक 5 काउंट ना पूरा हो जाए। वैसे इतना शर्माओ मत, इंटरव्यूअर के सामने ना कैमरा खोल के नहीं बैठना होता है, पता है, सबसे ज्यादा गंदी आती है। ठीक है, ग्रेट। 5, 5 से ज्यादा भी होंगे तो भी चलेगा, 5 से ज्यादा भी होंगे तो भी चलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, अब ऐसा फील आ रहा है कि हाँ, मतलब इट्स अ ग्रेट सेशन गाइस। बाय द वे मेरे हिसाब से मेरे को बहुत अच्छी ऑडियंस मिल रहा है, आई थिंक। ठीक है, एंड लेट्स हैव अ फोटो यार, एक छोटी सी फोटो मस्त सा यार, और भी जने खोल लेते तो कैमरा बहुत ही अच्छा लगता, बहुत तगड़ा लगता। कोई किसी को जज नहीं कर रहा है। नाइस। ठीक है यार, जो जो सत्य, प्रतिभा, अपने ईमेल आईडी पिन करो, सुमित, अंश एंड आकांक्षा, अपनी ईमेल आईडी जल्दी से पिन करो, जल्दी से पिन करो ईमेल आईडी। आई विल आस्क माय टीम कि वो आपको जल्दी से जल्दी एक्सेस प्रोवाइड करे। ठीक है, और कोई अंश 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 अगर कोई भी रह गया हो जो, ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो यार बिल्कुल बताना। आई विल ट्राई टू मेक दिस सेशन दिस टाइप्स ऑफ सेशंस। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट। इफ एनीवन एवर, ठीक है, बहुत सारे आ गए यार email ही। वर्षा, you will get the access in next 2 to 3 days. From 1st of August, we are going to start this. And thank you, team. Thank you, Gunjan, for giving me a Thank you so platform. much, Sarthak sir, to come and enlighten us with such an amazing session. And thank you everyone for being such an interactive audience. And thank you Thank you. so much, Sarthak sir, for such an surprise. No. So guys, let's connect on our social media handles to first stay tuned for our next webinar on 25th July. Don't forget to fill Okay, feedback form. okay. So it's time to go. Thank you, everyone. And if anyone have any doubt, so again, I am saying this कि आ जाओ Instagram पे, LinkedIn पे मिलते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। बाय बाय, सी या।